for you people, my friends. In a compressible fluid flow field, the Mach number indicates the ratio of. In a compressible flow field, the Mach number indicates the ratio of. याद है किसी को? Anyone knows what is Mach number बेटा? Mach number का बेसिक फार्मूला क्या होता है बेटा? How to calculate the Mach number in terms of forces? My friends, in dimensional analysis chapter of fluid mechanics, you will come to know Mach number is what? It is basically square root of inertia force to elastic force. Inertia force to elastic force. To elastic force. So answer will be B Bombay. Chalo. Yes, very good, very good, very good, very good. Magdamaji, very good, Trinath, Venkata Kishore, very good, Suresh, very good, Umesh, very good, Palak, very good, Ajay, very good, Saurabh Desai, very good बेटा, Satabdeep, very good. अगर आपका रिजल्ट नहीं आया बिमलेंदु, you put no, please put no. Mohit Kumar, very good बेटा, very good. Shall we go to the next question? Shall we go to the next question? बोलो रे बाबा, shall we go to the next question? Next question is this. An aircraft is flying at a speed of 800 km per hour. An aircraft is flying at a speed of 800 km per hour at an altitude where the atmospheric temperature is minus 20 degrees Celsius. What is the approximate value of Mach number of the aircraft? They are asking the Mach number. How are you going to find the Mach number, beta? How are you going to find the Mach number? How are you going to find the Mach number? Bolo re baba, bolo re baba. How are you going to find the Mach number? How are you going to find the Mach number? Attendance is very less. You people are not sharing the links, beta. You people are not sharing the links. I will close the compressible flow here only. If you people will not share the links, I will close the compressible flow here only. I will close the compressible flow here only. If you are not sharing the links, kindly share the links with your friends, beta. I want strength. Okay, Mach number कैसे निकालेंगे बेटा? We are doing so much for you people. At least you should share the links बेटा. You should start sharing the links बेटा. Mach number is what? Velocity divided by what? Speed of sound. बेटा speed of sound कैसे निकालेंगे? How to find the speed of sound? How to find the speed of sound? बोलो रे बाबा. How to find the speed of sound? My friends, how to find the speed of sound? Very, very important questions. Very, very important question for GATE 2021. These are the very important questions for GATE 2021. You can expect some questions from here, beta. Now, can you tell me how to find C? C कैसे निकालेंगे, my friends? How to find C? Speed of sound. What is the formula of finding of speed of sound? बोलो रे बाबा. Gamma RT. Gamma RT. Very good. So the formula of Mach number is V. V is given beta 800 km per hour. Can I convert this kilometer per hour into meter per second? How to convert kilometer per hour into meter per second? How to convert kilometer per hour into meter per second? बोलो रे बाबा. बोलो बेटा. My friends, please tell me. My friends, please tell me. हाँ, 5 by 18. Root over gamma. You can assume air is diatomic gas. 1.4 R. Excellent. Very good. Very good. ये हुई ना बात. ये हुई ना बात. Share कर दो रे बाबा. Kindly share this live class link with all your friends. Share कर दो रे बाबा. Share कर दो रे बाबा. Share कर दो रे बाबा. I am depending on you. I am depending on you. I am depending on you. You know my friends. Whatever you are saying, I am doing. आप लोग R&DC बोल रहे थे, R&DC की क्लास में लेकर आ रहा हूं. You are talking about theory of machines. I am bringing the theory of machines faculty. So I am depending on you. But आप लोग शेयर नहीं करते हो रे बाबा लिंक. लिंक शेयर कीजिए. लिंक शेयर कीजिए. What is the R of the air? आपको लिंक शेयर करना है बेटा. प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द लिंक्स. ऐसे काम नहीं चलेगा. अगर आप लोग लिंक शेयर नहीं करेंगे, इट विल डिमोटिवेट ऑल द फैकल्टीज.
मैं कितना बोल कर लाता हूं फैकल्टीज को, कितना अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे विल कीप ऑन ब्रिंगिंग द स्टूडेंट्स। आप लोग ऐसा करेंगे तो मजा नहीं आएगा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस बेटा? 253 केल्विन। चलो, नाउ यू टेल मी, सॉल्व इट एंड टेल मी द मैक नंबर बेटा। सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर बेटा। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैक नंबर इज इक्वल टू कैपिटल V by C। दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम फॉर माय क्लास, माय फ्रेंड, स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला इज √गामा RT फॉर परफेक्ट गैस। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? यस, एक्सीलेंट। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? कंफर्म मी बेटा, कंफर्म मी, कंफर्म मी, कंफर्म मी बेटा। 0.69, ओके, 0.69, वेरी गुड। 0.697, excellent. B, Bombay is the correct answer. Beta, very 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 high chances that such question can come in GATE exam. बहुत ज्यादा chances है, you will be seeing such questions in GATE exam for 1 marks. For 1 mark, such questions can come in GATE exam because MAC number is very 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 important. So whatever the question they can frame around MAC number, I am telling you. Now one more question, one more question. इसको फटाफट से करिए। एक क्वेश्चन मैंने किया आप लोगों के लिए, one question I have solved. Now this question you people will be solving. The velocity of a gas flowing through a duct is 300 meter per second. So the capital V is given 300 meter per second. Its temperature is 127 degrees Celsius. Capital T is given. If you are converting into Kelvin, how much Kelvin you will get? You will get 400 Kelvin. Gas constant is capital R, 0.25 kilojoule per kg per Kelvin. The gamma value is given 1.6. What is the value of Mach number? फटाफट से करेंगे बेटा। I want you people to give the answer. I want you people to give the answer. फटाफट से कीजिए बेटा। Let us solve such problems. बेटा फटाफट से करेंगे। Please solve this question. Please solve this question. मुझे आंसर बताइए बेटा। फार्मूला सेम है बेटा, फार्मूला सेम है, मुझे आंसर बताइए फटाफट से। मेरा हर बच्चा आंसर देगा। Each and every student of mine will be giving the answer. Each and every student of mine will be giving the answer. बेटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Each and every variety problem we will be solving. Each and every variety of problem we will be solving बेटा। पहली बार आप लोग कंप्रेसिबल फ्लो के क्वेश्चंस कर रहे हो, बन रहे हैं ना आपसे? आर यू एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा बोलिए आंसर क्या आ रहा है? माय फ्रेंड्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग। माय फ्रेंड्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग फॉर द मैक नंबर। सब लोग बताएंगे मैक नंबर का आंसर कितना आ रहा है बेटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी बेटा। मैं बोल रहा हूं आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शैल वी मूव फॉरवर्ड? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। शैल वी मूव फॉरवर्ड? शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस 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 यस, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स at 400 km per hour at sea level where the temperature is 15 degrees Celsius. The velocity of the aeroplane at the same Mach number is same, at the same Mach number at an altitude where the temperature is -25 degrees Celsius is the prevailing would be. बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे बेटा इस चीज को। लेट अस सपोज बेटा मिनिमम टाइम में सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज एट सी लेवल my state is 1, let us suppose at altitude, state is 2, करो बेटा सॉल्व। So here Mach number at state 1 will be V1 by C1,
मैक नंबर एट स्टेट 2 विल बी व्हाट? ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है। V2 by C2. So in the question he has given, Mach number at state 1 is equal to Mach number at state 2. Mach number at state 1 is equal to Mach number at state 2. What will happen beta? V1 by C1, V1 by C1 will be equal to what? V2 by C2, V2 by C2, V2 by C2. Oh my god. So what will happen beta? V1, what he is asking, V2 he is asking na. So what will be the formula of V2? The formula of V2 will be, देखो इससे फायदा क्या होगा एक बार देख लो, आपको कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। V2 will be equal to what? C2 by C1, speed of sound at state 2 divided by speed of sound at state 1 into V1, So V2 will be equal to root over gamma, तो सेम रहेगा, R सेम रहेगा, T2 divided by root over gamma R T1। वेरी गुड, चलते करेंगे बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे रे बाबा, फोड़ देंगे रे बाबा प्रॉब्लम, बनाएंगे रे बाबा प्रॉब्लम, एग्जाम में भी बनाएंगे प्रॉब्लम। क्वेश्चन से डरने का नहीं है बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, करते चलेंगे मेरे साथ सॉल्व। एवरीवन विल कीप ऑन सॉल्विंग अलोंग विद मी। मेरा हाथ पकड़ के चलना, आई विल मेक श्योर यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बेटा, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ रे बाबा, T2 डिवाइडेड बाय व्हाट? T1, रूट ओवर T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू V1। वैल्यूज रख दीजिए बेटा, वैल्यूज रख दीजिए। तो क्या आ रहा है? V2 इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? I am very happy, so many people have solved this question, very good beta। Remember one thing, temperatures you should keep in Kelvin only, never commit this mistake of keeping in degree Celsius. There are so many students who are getting the wrong answer because of this only। T2 is how much? At altitude what is the temperature? -25। तो बेटा कितना हो गया टेम्परेचर केल्विन में? what is the temperature in Kelvin? 273 minus 25 divided by what is the temperature? T1 is how much? बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चुनकर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, मजा आएगा आपको। अभी बेसिक्स करवा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैक नंबर से क्वेश्चन आना है बेटा, सुन लो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। इन गेट 2021 you can get the question from here, very important, this is 400। चलो बोलो बेटा, V2 is how much? सॉल्व करके V2 कितना आ गया रे बाबा? V2 is how much? कंफर्म मी बेटा, कंफर्म मी। आर यू गेटिंग लाइक दिस? कंफर्म कर दो बेटा, V2 की वैल्यू आपकी आ गई क्या? कंफर्म कर दो रे बाबा, कंफर्म कर दो रे बाबा। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 371.2। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 371.2। बोलो रे बाबा, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? आंसर इज सी चेन्नई। यस। चलो रे बाबा, shall we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। shall we go for the next question? बोलो रे बाबा। यस सर। ओ माय गॉड, द मैक नंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द मैक नंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हेन द डायनामिक टेम्परेचर ऑफ एयर at the entry of the engine equal to static temperature। dynamic temperature is equal to the static temperature। static temperature तो सबको पता है बेटा, static temperature everyone knows, it is a T only। what is the meaning of dynamic temperature? dynamic temperature का क्या मतलब है बेटा? संदीप पूछ लेना बेटा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा बेटा।
चलो, डायनामिक टेम्परेचर का मतलब क्या है बेटा? डायनामिक टेम्परेचर का मतलब क्या है, बोलो बोलो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैं बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो बेटा, लेट अस सपोज द काइनेटिक एनर्जी रेट, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी रेट बेटा? यही तो होगी हाफ m डॉट v स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रेट ना, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी रेट ना। अरे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी रेट? हाफ m डॉट v स्क्वायर। Let us suppose I'm converting this kinetic energy rate into enthalpy rate, into enthalpy rate. So what will be the enthalpy rate? M dot cpt, m dot cpt, then this temperature whatever I'm getting, that is my dynamic temperature. So basically what I'm trying to tell you is ये तो m dot तो गया, so what I'm getting, the dynamic temperature. Let me write TD. So TD will be equal to what beta? V square divided by 2Cp. So this is your dynamic temperature. या सुन लो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? Let us suppose you are having some fluid flowing at some velocity capital V. Of course it is having some kinetic energy rate. Let us suppose I want to see this kinetic energy rate is equivalent to how much enthalpy rate. So m dot cpt, so whatever t I am having there, that is your dynamic temperature. I hope everyone is clear. So what is given in the question? क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते जाओ। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन dynamic temperature is equal to static temperature. Static temperature is your normal T. So what is the dynamic temperature beta? V square by 2Cp. V square by 2Cp is your dynamic temperature. It is equal to static temperature. कहने का मतलब है बेटा V square is equal to 2CpT. बेटा ये Cp की वैल्यू बताना, तो I have told you the value of Cp ना. Do you remember R gamma? What is the Cp value in terms of R and gamma? R gamma upon how much? R gamma upon how much? Gamma minus 1 T. Oh my God! Are you able to understand? ये किसी को समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो ध्यान से, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? Can I write in this way? ध्यान से देख लेना. Can I write in this way? V square is equal to what? 2 gamma capital RT, 2 gamma capital RT divided by gamma minus 1. बेटा ये gamma RT क्या हो गया? किसी को याद आ रहा है? रूट ओवर gamma RT was equal to what? Speed of sound. So this is c square. So what I am getting my friends? यहां से मुझे क्या मिल रहा है? V square divided by c square is equal to what? 2 upon gamma minus 1. Beta, this is Mach number square. V by c is nothing, simply the Mach number. So Mach number square is equal to, what a beautiful question. What a beautiful question. 2 by gamma minus 1. Beta, gamma is how much? 1.4 minus 1. ये बताओ बेटा कितना आ गया? Mach number square is equal to how much? 2 by 0.4. 2 by 0.4 is 2 by 0.4 will be 5. So how much I am getting beta from here? What I am getting my friends from here? Mach number. What I am getting from here my friends? Mach number is equal to what? Mach number is equal to what? Root 5. बेटा ये रूट 5 की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता है ना? What is the value of root 5 बेटा? What is the value of root 5? कंफर्म कर दो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में. Can you confirm me? What is the value of root 5 बेटा? 2.2. What a beautiful question बेटा. What a beautiful question. यहाँ पे पूरा खेल है कि आपको समझ में आना चाहिए what is the meaning of dynamic temperature. Are you clear? Yes, Venkata Kishore, yes. So are you clear with this? बोलो रे बाबा, are you clear with this?
डायनामिक टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? v स्क्वायर बाय 2cp। v स्क्वायर बाय 2cp इज रिप्रेजेंटिंग द डायनामिक टेम्परेचर। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? एक्सीलेंट। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट 2021। I am telling you compressible flow is the newly added topic, newly added chapter in fluid mechanics and you can expect the question from here। और अगर compressible flow से question आता है it will be game changer because so many people are not aware of compressible flow chapter। बहुत लोग हैं जो compressible flow छोड़कर जाने वाले हैं and if any question is coming from this chapter it will be game changer। Next question, oh my god, ये इसका आंसर तो आप दो। The concentration of प्रेशर पल्सेस, मैंने बताया था बेटा, ये आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर पल्सेस क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट मैक नंबर ऑफ 0.5। बेटा मैक नंबर इज गिवन 0.5, मैक नंबर इज गिवन 0.5, मैक नंबर इज गिवन लेस देन 1। बेटा अगर मैक नंबर लेस देन 1 है, लिसन केयरफुली, इफ द मैक नंबर इज लेस देन 1 हाउ द प्रेशर पल्सेस विल लुक लाइक, मैंने बताया हुआ है आपको। I have told you clearly in the class, very important question I'm discussing my friend for GATE 2021। देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है मैं बताता हूं। If the Mach number is less than 1, I am having which flow? I am having which flow? कौन सा flow है बेटा? कौन सा flow है? If the Mach number is less than 1, I am having the subsonic flow। याद है? याद है? कुछ इस टाइप का बताया था मैंने आपको। Are you able to recollect from the diagram? अरे this diagram is from the class only. This diagram is coming from the class only. I have discussed in the class. I have discussed this case in class. Moving point source velocity is less than c in a stationary fluid. देखो देखो क्या हो रहा है। This is the body. This is the body. This is the body when it is moving forward. This is the body which is moving forward with the velocity less than c. यहाँ पर what is the concentration ahead of the body? What is the concentration ahead of the body for these pressure pulses? For these pressure pulses, for these pressure patterns, I am having more concentration here। अगर आप ध्यान से देखेंगे, here the concentration is more, on the back side you are having less concentration। So what is the answer for this question? The concentration of pressure pulses created by an object moving at Mach number of 0.5 is larger ahead of the body, larger ahead of the object। Are you getting what I'm saying? Is it clear to everyone? Yes, 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 very good, very good। Answer is A, Agra। Answer is A, Agra। I hope everyone is clear with this। I hope everyone is clear with this। Answer is A, Agra। चलो next question is, और क्या question है बेटा? I have told you what is Mach angle। आपको याद होगा, I have given you this concept। I have told you the concept of Mach angle। Mach angle is represented by alpha, Mach number is represented by capital M। शेयर कर दो रे बाबा, लाइव क्लास में शेयर कर दीजिए लिंक। बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। Mach angle और Mach number के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। नागा साइड टेल मी बेटा, नागा साइड टेल मी। महादेव टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो so many students are giving the answer A, Agra। so many students are giving the answer A, Agra। this is wrong बेटा, answer A, Agra is wrong। answer A, Agra is wrong। what else? answer D, Delhi is also wrong। answer D, Delhi is also wrong। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं बेटा। देखो यहीं पर ही आपको चीजें समझनी है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम हुआ, आपको पूरा कंफ्यूज कर दिया रे बाबा। यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग आंसर ए आगरा और डी दिल्ली। आंसर इज नाइदर ए आगरा नॉर डी दिल्ली। ऐसा बताया था मैंने आपको। यू रिमेंबर, इफ द मूविंग पॉइंट सोर्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल V मोर देन c इन ए स्टेशनरी फ्लूइड, आई वाज गेटिंग मैक वेव एज मैक कोन। आपको याद है ना, मैक वेव कैसा दिखता था? मैक वेव वाज लुकिंग लाइक व्हाट? मैक वेव वाज लुकिंग लाइक व्हाट? मैक कोन। और ये देखो, ये होता था ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल अल्फा इज मैक एंगल। मैक एंगल, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहां से साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, c बाय v, c बाय v। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू c बाय v मींस 1 बाय m। याद रखना बेटा, साइन अल्फा इज c बाय v, साइन अल्फा इज 1 बाय m। सो अगर ये तो गलत है,
दिस कैन नॉट बी द, बिकॉज द राइट रिलेशन विल बी व्हाट, राइट रिलेशन विल बी व्हाट, सही रिलेशन क्या होगा बेटा, सही रिलेशन क्या होगा यहां पर, सही रिलेशन ये होगा मैक नंबर इज इक्वल टू 1 बाय साइन अल्फा. दिस इज इनकरेक्ट बेटा, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट बेटा, ये गलत है. देखो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. देखो ध्यान से बेटा, अगर साइन अल्फा इज 1 बाय m, देन अल्फा विल बी हाउ मच बेटा, साइन इनवर्स 1 बाय m. सो आंसर डी दिल्ली इज आल्सो रॉन्ग. ये भी रॉन्ग है बेटा. दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ द आंसर इज आइदर बी बॉम्बे और सी चेन्नई. तो एक बार देख लेते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं. देखो अगर साइन अल्फा ये है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर. आई वांट टू फाइंड कॉस अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग इज गिवन. आई वांट टू फाइंड कॉस अल्फा. सो कैन आई से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1. So can I say cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha beta? Very good, excellent, excellent. What will be sin alpha beta? What will be sin alpha beta? 1 by m. So 1 by m square. 1 by m square. So what I am getting, m square minus 1 by m square. So what is the value of cos alpha I am getting? Cos square alpha I am getting m square minus 1 by m square beta. m square minus 1 by m square. So cos alpha is equal to what? Cos alpha is equal to what? Cos alpha कितना होगा बेटा? Cos alpha will be equal to root over m square minus 1 by m square. I hope everyone is clear till here. So alpha हो जाएगा cos inverse, cos inverse root over आर यू गेटिंग? व्हाट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन. बेटा देखो कैसे परेशान कर दिया इस क्वेश्चन आपको. ये रूट यहां तक है बेटा. आई थिंक ये रूट यहां तक है ना. यस. हाँ 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 हाँ. देखना बेटा ये रूट कहां तक है, ये रूट का बताओ कहां तक है बेटा, ये मुझे कंफर्म करो. ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास? मुझे बेटा ये कंफर्म कर देना, ये कंफर्म कर दो बेटा. इज इट फाइन? हाँ रूट नहीं होगा ना. हाँ ये रूट ऊपर ही रहेगा बेटा, ये रूट ऊपर ही रहेगा, ये रूट ऊपर ही रहेगा. चलो बेटा यहां तक क्लियर है. या चलो नीचे भी लगाना है तो नीचे लगा लो, पर एम स्क्वायर कर दो फिर. अगर नीचे लगाना है तो लगा लो, पर स्क्वायर कर दो फिर, है ना. चलो क्लियर बेटा. हाँ 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 वरुण ठीक है बेटा. यस 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 यस. चलो रे बाबा, चलो रे बाबा. देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता. इसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, इसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. ये कैसे गलत है एक बार देख लेते हैं बेटा. साइन अल्फा इज 1 बाय m, साइन अल्फा इज 1 बाय m. एक बार इसको चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं. क्या पता यहां से कुछ आइडिया लगे हम लोग को. एक बार देख लो, इसको चेक कर लेते हैं ना, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा. देखो क्या पता यहां से कुछ आइडिया लग जाए. ध्यान से देखना बेटा. साइन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 1 बाय m. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाउ मच बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाउ मच, हाइपोटेनियस. सो व्हाट विल बी द बेस, बेस विल बी हाउ मच बेटा, बेस कितना होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है ना. सो द बेस इज इक्वल टू हाउ मच बेटा. बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूं आप लोग के लिए, बहुत ही इजी वर्ड्स में. तो ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना, देखना ध्यान से. नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं. सो देखो ध्यान से बेटा. बेस इज इक्वल टू हाउ मच, बेस इज इक्वल टू हाउ मच, रूट ओवर
hypotenuse, let me say m square minus 1 square, तो tan अल्फा क्या होगा? tan alpha will be perpendicular is 1 by रूट ओवर m स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी कहीं ना कहीं पर गलत है, यहाँ पे ये नहीं है, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आई थिंक बी ही करेक्ट है ना? कैन आई से बी इज करेक्ट? अभिषेक, हाउ आर यू बेटा? थैंक यू सो मच अभिषेक। हाँ, तो ठीक है ना? आई होप नाउ एवरीवन इज सेटिस्फाइड, बी इज करेक्ट। आई होप एवरीवन इज सेटिस्फाइड नाउ। हाँ, हटा दिए मैंने बेटा, उसे हटा दिया मैंने। बोलो बेटा, आर यू क्लियर टिल हेयर? आर यू क्लियर टिल हेयर? बोलिए बेटा, आप लोग यहां तक क्लियर हैं? कंफर्म कर दो बेटा, टाइपिंग चैट बॉक्स, टाइपिंग चैट बॉक्स, आर यू क्लियर टिल हेयर बेटा? टाइपिंग चैट बॉक्स, आर यू क्लियर टिल हेयर बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए। इन अ सुपरसोनिक फ्लो, इफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मैंने बताया था बेटा आपको, इफ आई एम हैविंग डाइवर्जिंग डक्ट, ये मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। इफ द क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देखो ऐसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। Let us suppose I am having the isentropic flow through a diverging duct. It is given a cross section is increasing in the direction of flow. Beta, this diverging duct will be behaving as what? मैंने बताया हुआ है बेटा, in the last class we have discussed this beautiful thing. In the last class we have discussed this beautiful thing. Do you remember? Do you remember my friends? We have discussed in a beautiful way. We have discussed in a beautiful way. आपको याद है? आपको याद है क्या होता है इसमें बेटा? हाँ, it is giving which effect? Excellent. It is going to give this diverging duct. This diverging duct will be giving which effect beta? It will be giving which effect? Bolo re baba. It will be giving the effect of what? Nozzle effect. Nozzle effect. And if I am having the nozzle effect, मैंने बताया बेटा, पूरा अच्छे से बताया हुआ आपको। If I am having supersonic flow means मैक नंबर, पूरा फार्मूला लिखवा कर डेराइव किया था, पूरा फार्मूला लिखवा कर डेराइव किया था, वही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछ रहा है। इन सुपरसोनिक फ्लो, दैट मींस इफ द मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, इफ द क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजिंग इन द फ्लो डायरेक्शन, दैट मींस इफ आई एम हैविंग द डाइवर्जिंग डक्ट 100% आई विल बी गेटिंग द नोजल इफेक्ट, एंड इफ आई एम गेटिंग द नोजल इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? 100% velocity increases, and opposite of this what will happen? Pressure will decrease. So what is the answer? Bolo re baba, bolo re baba, what is the answer? What is the answer? Anyone in the class can tell me what is the answer re baba? What is the answer? Bolo re baba, bolo re baba, bolo re baba. Excellent, 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 very good. Answer is B, Bombay. Are you able to solve the problems, my friends? These I'm telling you, these are the very important problems for GATE exam point of view. GATE point of view से बहुत important चीजें बता रहा हूँ आपको, very 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 important things I'm telling you. I hope everyone is able to solve. आ गया रे बाबा, answer is B, Bombay. आ गया रे बाबा, आ गया रे बाबा, answer is B, Bombay. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप मुझे आंसर देंगे। अब मैंने आपके ऊपर बहुत मेहनत कर ली, अब एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए छोड़ दिया मैंने ये क्वेश्चन, अभी सॉल्व करके बताओ। एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन एयर फ्लो विद अ स्टैटिक प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। बेटा स्टैटिक प्रेशर मींस नॉर्मल प्रेशर, P is given 200 किलो पास्कल, फाइन, एंड a static temperature of 20 degree Celsius. Beta, static temperature is given 20 degree Celsius. The meaning 20 degree Celsius is 293 Kelvin. And a velocity is given 200 meter per second.
बेटा ये पूछ क्या रहा है? Look at here what he is asking. What is the pressure and temperature at the stagnation point? He is asking the pressure and temperature at the stagnation point. He is asking P naught. He is asking P naught and T naught. कर पाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को? बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. What a beautiful question. What a beautiful question. कीजिए बेटा. मैंने फार्मूला सब आपको बताए हुए हैं. I have derived the formulas in the class. मैंने सब फार्मूलाज क्लास में डेराइव किए हैं बेटा. I have derived the formulas in the class. अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला हमने ऐसे डेराइव किया था. T naught by T is equal to what बेटा? 1 plus gamma minus 1 by 2 मैक नंबर स्क्वायर. P नॉट बेटा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ सकता है. 1 प्लस गामा माइनस वन बाई 2 मैक नंबर स्क्वायर इनटू पावर में क्या आएगा बेटा? गामा अपॉन गामा माइनस 1. कीजिए सॉल्व बेटा. मैंने आपको सफिशिएंट हिंट दे दिया है. स्टैग्नेशन प्रेशर आप बोल रहे हैं 105. नो बेटा. सुनील नो. सुनील एक बार और ट्राई करो बेटा. सुनील एक बार और ट्राई करो बेटा. समवेयर यू हैव कमिटेड द मिस्टेक. सबसे पहले आप मैक नंबर निकालिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द मैक नंबर. आपको मैक नंबर की जरूरत है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द मैक नंबर. इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करवाए जहां पर आपको मैक नंबर चाहिए था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द मैक नंबर बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द मैक नंबर. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द मैक नंबर? How are you going to find the Mach number? Mach number will be equal to what beta? Mach number will be equal to what? Mach number will be equal to what? Capital V divided by C. Capital V divided by root over gamma capital RT. बेटा मेरे पास 251 के आसपास दे रखा है आंसर. आई एम हैविंग अप्रोक्सीमेटली 251. दिस इज करेक्ट. पलक T नॉट इज करेक्ट. T 312.9 Kelvin. T नॉट इज करेक्ट. T 312.9 Kelvin. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. T नॉट इज करेक्ट. कैपिटल वी कितना है बेटा? 200 डिवाइडेड बाय गामा 1.4 R 287 इंटू 293. बताइए बेटा. वेरी गुड वेरी गुड. मैक नंबर मुझे कंफर्म करो बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक नंबर यू पीपल आर गेटिंग? मैक नंबर मुझे कंफर्म कीजिए बेटा. वेरी गुड कोमल. कोमल वेरी गुड. समीर वेरी गुड बेटा. आई एम वेरी हैप्पी. सो मेनी पीपल आर गिविंग द आंसर. वेरी गुड बेटा. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. सो मेनी पीपल आर गिविंग द राइट आंसर बेटा. सो मेनी पीपल आर गिविंग द राइट आंसर. आई एम वेरी हैप्पी. मैक नंबर की वैल्यू बता दो. किसी ने मैक नंबर निकाला था? Anyone calculated Mach number? Give me the value of Mach number बेटा. Excellent. 0.58. अब सॉल्व करो बेटा. सॉल्व करो. यहां पर रख दो Mach number. Here you keep 1.4. I am telling you the answer बेटा. आप सॉल्व कीजिएगा. आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा. यहां पर आप वैल्यूज रखिएगा. अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आना चाहिए 312.9. कंफर्म कर देना बेटा वैल्यू रखकर. 1 प्लस 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.58 स्क्वायर. देखो बेटा अगर मैं एक स्टेप लिखना चाहूं आपके लिए लिख सकता हूं. T नॉट डिवाइडेड बाय T. T इज हाउ मच? 293 Kelvin. 1 प्लस 0.4 divided by 2
इंटू 0.58 स्क्वायर, 0.58 स्क्वायर। बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है अभी, अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो बन जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आर यू गेटिंग लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ? बेटा मुझे प्रेशर बताओ, स्टैग्नेशन प्रेशर की वैल्यू। टेल मी द वैल्यू ऑफ स्टैग्नेशन प्रेशर बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ स्टैग्नेशन प्रेशर। बेटा अभिषेक मेरी क्लास एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इट विल बी स्टार्टिंग एट 6 PM, इट विल बी स्टार्टिंग एट 6 PM। बोलो बेटा। Excellent. The answer of P naught will be 251.8, 251.8 किलो पास्कल। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कंफर्म कर दो बेटा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? आज बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको, याद करो, याद रखो। सच बेसिक क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम। एक बार आपको दिखाता हूं, जो लोग लेट आए हैं, दोज हु केम लेट, बेटा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी सॉल्व टुडे। Some basic formula of Mach number. We have solved another question where we need to find Mach number. V is given, T is given. Same question where V is given, T is given. We have calculated the Mach number. Now we have taken another question where he has given the same Mach number and we have calculated the V2. And then we have solved one question on the basis of dynamic temperature. On the basis of dynamic temperature, we have solved. Let us suppose if I am having some fluid flowing at velocity v, let us suppose if that fluid is brought at rest, because of that how much temperature we can have, how much enthalpy rate we can have. From there I have calculated the temperature Td. Then this is the question based on the pressure pulses. This was the question based on the relation between Mach angle and Mach number. बहुत confusion होता है बेटा, most of the students will be giving the answer A and D, but the answer is B Bombay. And then we have discussed the question based on this thing which I have told you, which I have told you in the class. If we are having subsonic flow and if we are having diverging duct or converging duct, what will happen? If we are having the supersonic flow, if we are having the diverging duct or converging duct, what will happen? ठीक है। एंड देन ये तो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जहां पर उसने स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन प्रेशर पूछा था। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। बोलो बेटा, आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है? डू यू हैव एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क मी बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यस सच क्वेश्चंस कैन कम इन गेट एग्जाम बेटा। वरुण चौधरी को एक डाउट है सर, डायनामिक टेम्परेचर एंड स्टैग्नेशन टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टोटल टेम्परेचर होगा ना। स्टैग्नेशन आपको यू रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इन पिटॉट ट्यूब देयर वाज स्टैटिक हेड, डायनामिक हेड एंड स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड वाज व्हाट? स्टैग्नेशन हेड वाज व्हाट? स्टैग्नेशन हेड वाज व्हाट? इट वाज द समेशन ऑफ व्हाट? स्टैटिक हेड एंड डायनामिक हेड। नहीं आदिल, वो तो कुछ भी दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आदिल, वो तो कुछ भी दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सुरेश, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू फील फ्री टू आस्क। सुरेश, डू यू हैव एनी डाउट? सुरेश कृष्णन, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? यस, डेफिनेटली सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। एनीवन, एनी डाउट रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ गेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म? और कोई भी आपको डाउट है, आई कैन गाइड यू, आई कैन गाइड यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस चैनल इज सुपर सर, बट आई एम नॉट हैप्पी। आप लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट करो बेटा। यू हैव टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स। युगंधर, hydraulic machines will be completed later on. I don't know about hydraulic machines, but turbulent flow I will discuss. Your solving procedure is awesome, useful. Thank you so much Ashwin. एग्जाम्पल नहीं होता है बेटा कोमल, बता तो दिया मैंने, बता तो दिया। फ्लूइड डायनामिक्स में देख लो एक बार मेरी क्लास में बेटा, आपको पता चल जाएगा। डायनामिक वेलोसिटी, डायनामिक हेड मैंने बोला है, एक बार देख लो। यस, दिस चैनल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर गेट बेटा। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मॉर्निंग 7:30 to 8:45 AM
we are starting refrigeration and air conditioning. Okay,